बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है गो टू मार्केट स्ट्रेटजीज के टॉपिक पे। और हमारे पास जो सेगमेंट होस्ट है वो है रिस्पेक्टेड नईम जफर साहब एंड एक्सपर्ट ट्रेनर जो हमारे पास है वो है डॉक्टर आरिफा भुट्टो साहिबा। तो वी आर स्टार्टिंग विद टुडेस सेशन विद द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. तर्जुमा। वो जो नहायत मेहरबान है, तालीम फरमाई उसी ने कुरान की, फिर पैदा किया उसी ने इंसान को, सिखाया उसी ने बोलना उसको। सूरज और चांद पाबंद है एक हिसाब के, और झाड़ियाँ और दरख्त उसी को ही सिजदा कर रहे हैं। और आसमान को बुलंद किया उसी ने और कायम कर दिया मीज़ान आदल, ताकि न तजावज़ करो हद से निज़ाम मीज़ान में, और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ, और मत कम करो तोलते वक़्त। और ज़मीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ऑलराइट, वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मेन सेशन। तो आज के सेशन में हमारे पास रिस्पेक्टेड नईम जफर साहब जो कि चेयरपर्सन एस्पायर पाकिस्तान and super mentor and serial entrepreneur and professor of practice at UC Berkeley. And we have expert trainer Dr. Arpa Batu, professor at University of St. Jamshoro, and also a founding member of Aspire Pakistan. So respected Naeem Zufar Saab, over to you. Very good. Thank you, Zarullah. So, guys, we will be doing this session. Dr. Arfa is going to do the session. I'm available, answer questions or add something more if Arfa wants me to. But it's her show. But we are here to help you and answer your questions. Hopefully, after the presentation, there will be plenty of time for question and answer. Then I'll be able to chime in. But I'll pass it to Dr. Arfa to continue. Thank you very much, Naeem Zafar Saab and Izhar. So, and all the participants who are present in today's session, as it is the series of the Aspire Pakistan Founders Age Training Program, session number 9, and the topic of the today's presentation is go-to-market strategies. And as myself is Dr. Arifa Bhutto from University of St. Jamshoro. My qualification is a PhD from Aalborg University, Denmark, and I'm a professor here in University of St. Jamshoro in Department of Software Engineering, as well in IT also, and again, Director of Technology Incubation Center, University of St. Jamshoro. I'm working with the various organization like Aspire Pakistan, founding member of Aspire Pakistan 4 years ago, founding member of Aisha, co-chairman of Syntech Valley, a mentor, philanthropist, teacher, researchers, and so on. So overall, my expertise are in the IT and software, and now I jump into last 10 years into the entrepreneurship
and introduce so many things in and build the ecosystem here in Hyderabad, and especially in Karachi, Hyderabad, and Pakistan level I'm working, and with the Aspire Pakistan also. So, well, thank you, Naeem Zafar Saab. Do actually stop me and ask questions also. And a little bit, I need the interactive mode. Okay, whatever I am describing over here, you have a vast, actually kind of the experience in the entrepreneurship world. So to also guide us more in this regard, and especially regarding with the topic. So what is a go-to-market strategy? What it is like when we are developing as a further series of the startups, this founding program, ideation, then the plan, then the all those things are already done by the various scholars. So what is the go-to-market strategy? Why we need to be, and what is the importance of this thing? Actually, uh, when we are plan our startup, uh, to build it and work on it, but how to go to the market actually, what are the steps, what are the things, and how at what level we decided to launch our startups, that's the basic thing. And how the connect with the customers. So the main theme of this presentation is that what are the major things which we need to be think before going to the market. So effectiveness, mostly rapidly reaching and converting customers. How this is a very tricky thing, because as a startup, for gaining the first order or getting the first order from the customer side, that is a really very tricky job. And when it will comes and how you can increase it, that is the major things. So efficiency, ensuring profitability in your efforts, how you can get the profit, that is another thing. So normally go to marketing strategies, we do the various kinds of the things, mixed method, direct or indirect channels to educate, the support and distribute your product. What are those? Normally in a business model, we incorporate the GTM strategies, जो कि हम mostly जब भी हम go to marketing strategies बनाते हैं, so we have to think about before going to develop the product. The first one is a internal facet, which we have to be covered here, from the target market, value proposition and product messaging, pricing strategy, distribution plan, and how we do these things. Like is what is the CVP, customer value proposition क्या होनी चाहिए, how we can calculate it, GTM strategy क्या होनी चाहिए, reaching customer profit formula क्या होता है, technology operations, creating and maintaining the product. All these are the major topics of this actually today's presentation. इसमें तकरीबन हमारे जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंपोनेंट्स काउंट होते हैं. एक्सटर्नल लाइक फाउंडर कौन सा होगा, टीम कौन सी होगी, इन्वेस्टर कैसे लाएंगे, पार्टनर कौन होंगे, एंड सो ऑन. और इन सबको हम किस तरीके से अपनी बिजनेस या स्टार्टअप के साथ अलाइन करेंगे. सो दीज आर द मेजर थिंग्स के व्हिच वी वर डिस्कसिंग हियर इन दिस today's presentation. This is the one of the Michael Scott. मैंने उनका as a startup GTM framework as a reference के लिए लिया कि what are the major things are there. मार्केटिंग एंड सेल्स साइकिल क्या होता है, या स्ट्रेटजीज किस तरीके से हमें चैनल कौन से यूज करने चाहिए, ऑडियंस किस तरीके, जिसको हम सेगमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं कि वेरियस सेगमेंटेशंस आर द वेरियस टारगेटिंग कस्टमर्स क्या हैं क्या नहीं है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक हम नहीं जा सकते. मार्केटिंग की सबसे पहले जो हमारी स्टेप्स होती है कि हम अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके की हमारी प्रोडक्ट है, वेदर इट इज अ नीड ऑफ द प्रोडक्ट टू बिल्ड इट और नॉट, आइडिया वैलिडेट करना. ये सारी चीजें जो है हमारी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द स्टार्टअप जर्नी कि आपको पहले से ही ये सारी चीजें डिजाइन करनी पड़ती हैं या सोचना पड़ता है, इंस्टेड कि हम जंप करें आइडिया बिल्डिंग के ऊपर, या हम जंप करें
कि नहीं जी हमें जो है जल्दी से आइडिया बिल्ड कर दिया, प्रोडक्ट बना दी, और फिर जब प्रोडक्ट बन गई और हम मार्केट में लेकर गए तो कोई लेने वाला नहीं था। तो ये बड़ा इशू होता है। ठीक है, अक्सर जो स्टार्टअप्स हैं या हमारे आइडिया जो भी हमारी बिजनेसेस होती हैं वो फेल ही इस वजह से होती हैं कि हमारी जो मार्केट एनालिसिस होती है वो ठीक से नहीं होती। कहाँ पर जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए वन प्रोडक्ट इज रनिंग सक्सेसफुली तो वही आपकी पाकिस्तान में चले, या पाकिस्तान में अगर कराची में कोई प्रोडक्ट सही चल रही है तो वो जरूरी नहीं है कि हैदराबाद में भी चले। अभी जैसे हमारे 2019 में करीम इज वेरी सक्सेसफुल राइड कार सर्विसेज थी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, तो पाकिस्तान में भी चल रही थी, हैदराबाद में भी आ गई। वही लकीली कि हमें भी बड़ा मजा आता था कि उसकी हम सर्विसेज यूज करते थे, एंड सडनली द कोविड कम्स, और जैसे ही कोविड आया तो हैदराबाद से वो खत्म हो गई, एंड देन द सेम सर्विसेज रनिंग इन इस्लामाबाद, लाहौर, या अभी भी कराची में चल रही है, बट नॉट सक्सेसफुली इन हैदराबाद, क्योंकि हमें बहुत से सर्कमस्टेंसेस देखने होते हैं, उसमें क्या क्या स्ट्रेटजीज हमें अडॉप्ट करनी होती हैं। हालांकि ये मैंने इसलिए दिया कि दीज आर द वेरी रिनाउंड स्टार्टअप्स जो कि हमारे हर किसी के पास एग्जाम्पल में हैं कि ये हैं, थे, चले और वहां से स्टॉप भी हो गए। तो उनके रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें बिफोर द लॉन्चिंग अवर स्टार्टअप वो चीजें हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। सो सबसे पहले आता है कि हमारा स्टार्ट विद द कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन, के वो कैसे हम फाइंड करें कि होता क्या है, अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स और जॉब टू बी डन, यूज एक्सपेरिमेंट्स एंड मार्केट रिसर्च टू वैलिडेट। अगेन हम कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन जब तक नहीं करेंगे राइटली, अच्छा उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लेना होता है। अक्सर हम कहते हैं कि नहीं जी व्हाई वी वेस्ट आवर टाइम, हम जल्दी से पिक करें, लेकिन उसकी वजह से अक्सर हमारा आइडिया फ्लॉप हो जाता है। सो वी नीड टू बी के जी कस्टमर्स की नीड ग्राउंड लेवल पे क्या है, उनकी बाइंग पावर क्या है, उनकी साइकी क्या है, डू दे नीड इट और नॉट, दैट इज अनदर थिंग। अगेन जब आपने वो प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाएंगे तो उनका फिर रेस्पॉन्स या उनके साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, सारी चीजें जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। तो फॉर एग्जांपल जीटीएम स्ट्रेटेजी के अंदर हम ले द फाउंडेशन ऑफ प्रॉफिट फार्मूला कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। अक्सर हम जो स्टार्टअप्स बच्चे बना रहे होते हैं, हमारी भी यूनिवर्सिटीज में अक्सर एफआईपीज या कुछ स्टार्टअप्स चल रहे होते हैं। नॉर्मली प्रॉफिट फार्मूला मींस क्या होगा, हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम कैलकुलेशन सही नहीं करते, ना तो हमें उस प्रोडक्ट की सही वैल्यू हम डिजाइन कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन से हार्ड उसके फाइनेंसिंग है, कौन सी सॉफ्ट है, कौन से फिक्स्ड है, कौन से रिकरिंग है। फिर उन सारी सर्विसेज के ऊपर हम प्रॉफिट कितना रखना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन क्या होना चाहिए हर सर्विसेज के हिसाब से। फूड का कोई स्टार्टअप है तो उसका क्या होना चाहिए, अगर हमारा किसी और का है तो उसमें क्या होना चाहिए। तो अगेन देयर इज सो मेनी एग्जांपल्स, जैसे टेस्ला है, सीवीपी लग्जरी प्लस सस्टेनेबल मॉडल, एयरबीएनबी है, अफोर्डेबल यूनिक स्टेज। हर स्टार्टअप का अपना अपना सीवीपी होता है। ठीक है, अगर हम सीवीपी सही डिजाइन कर लेते हैं या फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ ये राइट पाथ है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका इट टेक्स टू द प्रॉफिट फार्मूला आल्सो, कि आपका ऑटोमेटिकली फिर वो प्रॉफिट भी दिलाएगा आपको। अदरवाइज फिर ये होता है कि चैन की तरह हम चक्की में पिसते रहते हैं, लेकिन हमें प्रॉफिट वो नहीं मिल पा रहा होता है। कहीं ना कहीं हमारे जो क्या फाइनेंसेस होती हैं वो अप डाउन हो जाती हैं। देखने के ऊपर तो हम कहते हैं हाँ हमें प्रॉफिट मिल गया, बट हाउ, कब वो इवन ब्रेक डाउन पोजीशन पे आएगा स्टार्टअप, कब हमारे वो रिटर्न मनी होंगे, कब हमारी वो सारी चीजें होगी, जो कि एक्चुअली प्रॉपरली फाइनेंस गेमिंग है, कि जिसको प्रॉपरली अगर हमने कैलकुलेट कर दिया इन इनिशियल स्टेज तो ऑटोमेटिकली आपका जो
स्टार्टअप है वो सक्सेस की तरफ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अक्सर जो अभी भी काफी स्टार्टअप्स हैं, यही जो सीवी पी होती है वो सही नहीं कर पाते, या प्रॉफिट फार्मूला सही नहीं कैलकुलेट कर पाते, तो ऑटोमेटिकली उसमें उनका फिर लॉस हो जाता है, या वो स्टार्टअप सक्सेसफुली नहीं चल पाता। अगेन ये सीवीपी जरूरी नहीं है कि आपने जो डिजाइन किया है अभी वही आपका आगे भी चलेगा। देन यू हैव टू, व्हेन इट इज ग्रोथ, तो उसके अकॉर्डिंग टू फिर आपको वो चीजें भी चेंज करना पड़ती हैं। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जीटीएम। देन उसके बाद आपकी आती है कि जीटीएम स्ट्रेटेजी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक पहुंचेगी कैसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, या आप मार्केटिंग टैक्टिक्स कौन सी यूज कर रहे हैं, ब्लॉग्स हैं, इन्फ्लुएंसर है, या मैसेजिंग है, व्हाट्सएप है, या आप वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, सेल्स टीम्स हैं, या आपने कहीं पर जैसे काउंटर्स लगा लिए, काउंटर्स के ब्रोशर्स बना दिए, या बिलबोर्ड्स लगा दिए, या आपकी गोरिल्ला मार्केटिंग शुरू की, या क्या किया है आपने, कि दैट इज द इम्पोर्टेंट, कि जब आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी से पहले लोग आपको पहचानेंगे कैसे। सो यू हैव टू बी डिसाइडेड कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा क्या होगा। कि अच्छा, जैसे आजकल बहुत से यंग स्टार्टअप्स हमारे व्हाट्सएप पे भी बिजनेस कर रहे हैं, फेसबुक पे भी कर रहे हैं, इंस्टा पे भी कर रहे हैं, टिकटॉक पे कर रहे हैं। ये भी एक किस्म की मार्केटिंग हो रही है उनकी, और प्रोडक्ट सेल हो रही है। लेकिन अगेन आई थिंक किसी का मैसेज आया है कि सही नहीं आ रहा। हेलो, एनीवन? No, it's fine. फाइन। समवन सेज के द वॉइस इज नॉट। Yeah, but that could be a problem on their side. कोई delay होगा, आप फिक्र ना करें, आप go back to what you were doing, you're doing fine. Yeah, okay, so I was, so again so again इजाज वो someone, उनका म्यूट कर दो किसी को, सबको। जी जी। चलें। okay, so then the product messaging and marketing tactics आप क्या यूज कर रहे हैं, that is also important in the startup journey। कि अक्सर इतनी अच्छी प्रोडक्ट होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द नॉट अ वैलिड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं अडॉप्ट की होती, तो आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट तक भी नहीं जा पाती, या सेल नहीं हो पा रही होती। तो वी नीड टू बी, अच्छा, नॉर्मली अगर स्टार्टअप हम जब बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसमें मार्केटिंग का एक पोर्शन होता है कि जिसमें हमें ये स्ट्रेटेजीज बतानी होती हैं कि हाउ वी कैन सेल अवर प्रोडक्ट। ठीक है, और वो सेल के लिए आपकी वेरियस स्ट्रेटजीज वी हैव टू डिफाइन। जरूरी नहीं है कि हम कोई कहें कि जी एक्सपेंसिव वन हम ले। हम जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट हो गई, अच्छा वेबसाइट की फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई स्टार्टअप है जो कि वेब सर्विसेज दे रहा है, देन हाउ यू कैन डू इट। आप उसके एसईओ करा दें, आप उसकी पेड मार्केटिंग करा सकते हैं एफपी के ऊपर, या इंस्टा के ऊपर, या टिकटॉक के ऊपर। वेरियस काइंड्स ऑफ द थिंग्स वी हैव टू अडॉप्ट इट। और ये उसको मैं ऐसे कहती हूँ कि आपके पास बहुत सा अच्छी सी चीज है बनाई हुई है, लेकिन जब तक आप किसी को बताओगे नहीं तो वो आपसे खरीदेगा कैसे। सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन द जीटीएम। हमारी जो गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में होती है कि अच्छा, दूसरा आपके प्रोडक्ट का वो सेक्टर्स तो अलग हैं कि प्रोडक्ट बनी कैसी है, उसके क्या क्या है, वो तो आपको वैसे भी एनालिसिस करके आइडिया बिल्ड जो भी आप करते हो वो तो शुरू वाली स्टेजेस में आप कर लेते हो। लेकिन वंस यू कंप्लीटेड ऑल दोज बिजनेस प्लान्स एंड एवरीथिंग, और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट बन गई, नाउ व्हाट टू डू। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही आता है कि वैलिडेट और डिजाइन सच स्ट्रेटजीज के जहां पर आपकी प्रोडक्ट जो हो वो सेल हो सके।
देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंदर हम डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट टू द एंड यूजर इफेक्टिवली. एग्जांपल, एन ऐप फॉर मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज कैन यूज अ डायरेक्ट डाउनलोड फ्रॉम द ऐप स्टोर या इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एम्प्लॉयर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स. ये दोनों ही आपके मेथड है. अच्छा, अगेन वेरी करती हैं ये स्ट्रेटजीज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डिपेंडिंग ऑन के आपका स्टार्टअप टाइप क्या है, आपने क्या चीज डेवलप की है और उसको किस तरीके से सेल करना चाहते हैं. तो देन यू कैन यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड. Then start with the cost effective channels, scale over time. Again, अच्छा, sometimes हम ये भी कर देते हैं. अभी recently एक discussion चल रही थी कि Chinese product आजकल एक चल रही है टीमू, और टीमू के ऊपर आप देखें कितनी उन्होंने मार्केटिंग की है. तो एक मैंने उनकी न्यूज पढ़ी कि they put $1 million on the marketing. तो इनिशियली ये था कि अगर इतने $1 million उन्होंने मार्केटिंग की है तो उनको वैल्यू प्रोपोज या प्रॉफिट कैसे हो रहा है. तो जो मुझे उनका लगा है, आई डोंट नो, माइट बी नईम साहब उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी क्वेश्चन के ऊपर सोच रही थी कि अगर $1 million आप व्हाट्सएप खोलें, आप फेसबुक खोलें, आप जो भी चैनल खोलेंगे उसके अंदर तकरीबन टीमू की एडवर्टाइज और इतनी फ्रीक्वेंटली चल रही है, इतनी पेड मार्केटिंग उन्होंने की हुई है. नाउ हाउ दे अर्न इट. तो एक उनका मुझे जो चीज नजर आई व्हेन आई गो थ्रू दैट प्रोसेस के जी वहां से अच्छा, प्रोडक्ट भी बड़ी चीप है. ये भी एक अलग बात थी कि इतनी चीप प्रोडक्ट. दूसरी, आपसे शिपिंग कॉस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि चाइना से प्रोडक्ट आ रही है तो वो शिपिंग कॉस्ट भी नहीं ले रहे, फ्री ऑफ शिपिंग कॉस्ट है मोस्टली प्रोडक्ट्स. तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उनकी फिर कॉस्ट कैसे निकल रही होगी. एक उन्होंने मेथड अडॉप्ट किया है जो कि मुझे लगा था कि उनका जो रिटर्न पैकेजेस रेशो है वो कम है. क्योंकि जब हम ऑर्डर पे करते हैं तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज्यादातर सीओडी चलता है कि कॉस्ट ऑन मतलब डिलीवरी के ऊपर कि आप उस टाइम पे करते हो. तो मोस्टली कस्टमर्स जो होते हैं वो पे बैक कर देते हैं कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए थी, या रिटर्न कर देते हैं. तो उससे जाहिर बात है जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से रिटर्न रेशो ज्यादा होता है. तो इसमें ये है कि मिनिमम उन्होंने एक तो वैल्यू रखी हुई है कि यू हैव टू बी जो है आपका ऑर्डर होगा मिनिमम 2000 रुपीज से, इनिशियली 3000 था, फिर 2000, डिपेंडिंग ऑन दैट 2 से 3000 के अंदर वेरी करता है कि आपको एनी हाउ प्रोडक्ट लेनी है. ऐसे नहीं है कि 500 के ऊपर वो आपको कह देंगे कि हाँ ठीक है आपको ऑर्डर आ जाएगा. तो मिनिमम 3000 उन्होंने रखा था, और उसके बाद आप कितना भी कर सकते हो. तो माइट बी देयर जो प्रॉफिट वैल्यू है उसमें से उनकी निकल आ रही है, क्योंकि अच्छा, एक प्रोडक्ट जो हमें मार्केट में मिल रही है, फॉर एग्जांपल दराज के ऊपर आ गया या अली एक्सप्रेस के ऊपर आ गया, 10,000 15,000 की मिल रही है, यहाँ पर 5,000 में मिल रही है. तो इनका चैनल क्या है. अच्छा, आ भी चाइना से रही है प्रोडक्ट, तो मुझे अभी भी इनकी जो है प्रोडक्ट और या ई कॉमर्स वेबसाइट का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाउ दे रन सक्सेसफुली कि So, Dr. Arfa, if I can chime in on that, I think we should या not use Chinese companies as an example because चक्कर ये है कि China में they're not about profit. So ओके. it's not a viable model because China में ये होता है कि it's about employment. Because as long as the people are working hard in the factory, वो protest नहीं कर रहे. तो काम को नीचे रखने के लिए they keep churning out profit unprofitably and keep taking debt. So China is a very strange case, not a normal case. So let's teach our Pakistani students the normal case. China is Yeah, no, screwed up. actually for my own purpose I want to learn Yeah. this because I didn't Yeah. aware about this No, I thing, so did that's a why lot I of want study to on learn. China and Chinese economy, so I have a whole lecture on China on this topic. Yeah, But that's a good thing. yeah, short answer is they're not trying to be profitable. They're just trying to make products so people keep getting employment. Okay, that's another thing. Yeah, thank you for the information. So then to calculate the estimated customer acquisition cost, which is actually a really important thing in the go to marketing strategy, के आपकी cost कैसे निकलेगी.
कि हाउ यू कैन फाइंड आउट कि आपकी इतनी कस्टमर एक्विजिशन कास्ट हो सकती है. सो सेल्स कॉस्ट प्लस मार्केटिंग का डिवाइडेड बाय द कस्टमर एक्वायर्ड, कि आपके कितने, फॉर एग्जांपल अर्ली सेल मार्केटिंग कॉस्ट है $100,000, तो एस्टिमेटेड कस्टमर 1000, तो आपकी CAC $100 पर कस्टमर हो सकती है, जो कि हमें हर प्रोडक्ट की, जब भी हम अपनी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या सॉरी जो भी हमारी नीच हो है, उसकी हम जाहिर बात है वो तो सिलेक्ट करनी पड़ती है कि कितनी सेल्स कॉस्ट कितनी है प्लस मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है, प्लस में डिवाइडेड बाय दैट फार्मूला, तो आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड नॉर्मली हमें ये टेस्ट चैनल्स टैक्टिक्स फॉर 1 ईयर करने चाहिए, जो कि एवरेजली हम 100 क्विक कर लेते हैं. हमारे यहाँ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जो कि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी कोई हम स्टार्टअप बना रहे होते हैं तो जल्दी से हम जंप मार देते हैं कि हमें तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, चले 1 महीने में प्रॉफिट हुआ, लेकिन वी हैव टू बी कीप इट अप टू द 1 ईयर. 1 महीने की कास्ट के ऊपर हम कह देते हैं नहीं नहीं हमारा तो बिजनेस बड़ा प्रॉफिट में जा रहा है, लेकिन क्या पता नेक्स्ट मंथ में वो प्रॉफिट नहीं दे रहा. तो एक्चुअली जब हम पूरा उसकी पूरी टेस्ट चैनल सारी चीजें जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाए उसकी करके, फिर हमें वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं है, दैट वी कैन कैलकुलेट इट. और उसके बिहाफ के ऊपर कि जी स्ट्रेटजीज भी हमें फिर ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं कि कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो कि हम CAC को वैल्यूएबल बना सके. ऐसे ना हो कि इनिशियली हम जंप मार के, अच्छा ज्यादातर मार्केट हमारे यहाँ जो है इनिशियली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, रिटर्न ऑन प्रोडक्ट कितनी हो रही होती है वो नहीं पता होता. अच्छा उसके भी काफी रीजंस हैं कि हमने उसके अंदर मार्केटिंग क्या की, हमारी क्वालिटी पैरामीटर्स क्या थे, हमारी कम्युनिकेशन चैनल्स क्या थे, हमारा रिस्पांस रेशो क्या था. ये सारी चीजें फैक्टर करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जब भी आपका कोई स्टार्टअप लॉन्च हो रहा होता है तो उसके अंदर अगर ये इन डिटेल हो तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, या आपकी प्रोडक्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है. बट अगेन इट टेक्स अ टाइम. ये नहीं कि हमें जल्दी से जंप कर देना चाहिए कि हमारी ये प्रोडक्ट है हमने इतनी सेल कर दी तो ठीक है हमारा प्रॉफिट हो गया एंड देन वी जंप इट ओवर. तो ये जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि दिस वी हैव टू बी पेशेंसली वाइजली मैनेज एंड कैलकुलेटेड ऑल द थिंग्स. अगेन जब हम GTM में जाते हैं तो हमारी मैसेजिंग एंड मार्केटिंग टैक्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे यहाँ जो मोस्टली मैंने पर्सनली देखा है कि कितना भी बड़ा आपका ब्रांड है, कितनी भी बड़ी बिजनेस है, उसके अंदर ये जो हमारी मैसेजिंग एंड मार्केटिंग की जो लैंग्वेज है दैट इज रियली नॉट वेरी अप टू द मार्केट, कि हम उसको उस लेवल पे नहीं कंसीडर करते कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है. ऑनेस्टली दिस इज अ मेजर मैं कहती हूँ फैक्टर है फॉर द, अगर हम दूसरी मार्केट्स को देखें या उनकी प्रोडक्ट्स को देखें, अगर ये चीजें हमारे यहाँ सही तरीके से अलाइन हो. अक्सर आप देखें कि हमारी सर्विसेज जो होती हैं, किसी भी शॉप में चले जाएं या आपके जो सेल्स सर्विसेज होती है उसकी लैंग्वेजेस एंड टोन क्या है, आप किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या सर्विसेज दे रहे हो, कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हो, क्या आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू उसको बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो. ये बहुत ही हमारी मैंने अपनी लाइफ में भी, हम जब परचेजिंग कर रहे होते हैं तो ऑलवेज वी वेंट दैट शॉप, या वहां से खरीदते हैं चीजें जहां पर ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जी अगले का टोन अच्छा है, अगला हमें सुनेगा, अगला हमारी रिक्वायरमेंट को इजीली अंडरस्टैंड करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट दे सजेस्टेड. तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रोडक्ट जब आप सेल कर रहे हो तो इनिशियली क्या एंड तक भी. अच्छा कभी कभी मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ मोस्टली इन पाकिस्तान
कोई भी नया स्टार्टअप लॉन्च होता है तो शुरू में तो बड़ा ही चार्म होता है, बड़ा ही एनर्जी होती है, वो बड़ा ही जबरदस्त रिस्पांस दे रहे होते हैं, और जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है तो उनकी वो एनर्जी डाउन होती जाती है, उनके चैनल्स जो होते हैं या कम्युनिकेशन चैनल्स हो गए, रेस्पॉन्स चैनल्स हो गए, वो सारे वीक होते जाते हैं, एंड दैट इज द वन ऑफ द रीजन कि उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो खत्म होती जाती है, या उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इतना नहीं आ रहा होता है, एंड देन इन द एंड वो स्टार्टअप जो है हमारा खत्म हो जाता है। तो अब जैसे हमारे यहाँ मैंने करीम का एग्जाम्पल दिया था, तो आई वाज वंडरिंग कि जी करीम क्यों ऑफ हुआ यहाँ पर हैदराबाद के अंदर। एक तो छोटा टाउन था, दूसरा हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा विद इन द सिटी के अंदर अगर हम ट्रेवल करते 15 से 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। तो जब कोविड आया तो एक तो वो आपकी सर्कुलेशन बंद हो गई, लोगों का आना जाना बंद हो गया। दूसरा कि अब वो क्या करें, मतलब फारिग बैठे हुए थे तो क्या करें। तो कोविड इज अ मेजर फैक्टर। उसके बाद कोविड के बाद भी जैसे जैसे चीजें आई, पेट्रोल प्राइसेस बढ़े, हर चीज हुई, तो छोटे सिटी होने की वजह से उनको वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा था जितनी वो सर्विसेज दे रहे थे या जितनी वो डील्स दे रहे थे। और जैसे जैसे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, इकोनॉमी का डाउन हुआ, तो प्राइसेस इनके अप करना पड़े, तो यहाँ की लोकल जो लोग थे वो ट्रैवल करना नहीं चाहते थे कि जी जो टैक्सी हमें पहले 250 रुपए में पड़ रही थी या 300 रुपए में पड़ रही थी, वो उनको 400-500 में पड़ना शुरू हो गई। तो देन दे स्टॉप यूजिंग दैट करी सर्विसेज। हालांकि अच्छा था, गाड़ियां अच्छी थी, सब कुछ था, सर्विसेज अच्छी थी, ट्रैक भी होती थी, हर चीज होती, तो काफी। बट बाइंग पावर भी तो होना चाहिए ना, कि लोगों के अंदर भी तो हो कि हाँ भाई, मैं अगर 20 मिनट की ड्राइव में 500 रुपए देकर मैं इजीली गाड़ी में उतरूं, तो इंस्टेड ऑफ दैट दे वांट टू कि जी हम 150 रुपए में रिक्शा में चले जाएंगे। तो क्या हुआ, चलो ऐसी नहीं चलेगी, लेकिन हम रिक्शा में पहुंच जाएंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं या चल रही होती है, तो उसके अंदर टाइम टू टाइम वी हैव टू थिंक अबाउट दीज मार्केटिंग टैक्टिक्स अकॉर्डिंग। अगर ग्रोथ हो रही है, स्टॉप हो रहा है, जो भी हो रहा है, जरूरी नहीं कि हमने जो अलाइन की शुरू में वही चीजें एंड तक भी चलती रहे। तो टाइम टू टाइम हमें इसको रिविजिट करना पड़ता है। पेड एड्स हो गए, ब्लॉग कंटेंट हो गया, सोशल मीडिया पार्टनरशिप हो गया, ट्रैक परफॉर्मेंस मैट्रिसेस फॉर इफेक्टिवनेस के हमें उनकी एनालिसिस भी लेनी चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ वन साइडेड वन गो में चल रहे हैं और हमें पता ही नहीं चले कि जी हमारी प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल हो रही या इंक्रीज। अच्छा, अगेन एक और यहाँ पर फैक्टर जो मैं समझती हूँ एज ए स्टार्टअप, हम समझते हैं कि बनाया, सेल हो गया, अब ग्रोथ भी हो रही है, जैसी तैसी भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन हम उसके मेजर्स प्रॉपरली नहीं लेते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ग्रोथ किस फॉर्म में हो रही है और कहाँ पर हमारा नुकसान हो रहा है। हमारा 5 ईयर प्लान क्या है, हमारा 10 ईयर्स प्लान क्या है, हमारा 3 ईयर प्लान क्या है, हमारा 2 ईयर प्लान क्या है। अक्सर जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, ये सिर्फ आज का काम किया, कल तक, फिर ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल, उसके बाद वो उनकी एनर्जी डाउन होती जाती है। तो ऑटोमेटिकली वो स्टार्टअप या वो जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया होता है वो एग्जिट की तरफ चला जाता है। तो देन दे विल स्टार्टेड के चले जी नहीं चला, या जॉब्स की तरफ चले जाते, या उनकी एनर्जी कहीं और चली जाती है। तो किसी भी बिजनेस को मैं समझती हूँ या स्टार्टअप को, यू नीड टू रिविजिट अगेन एंड अगेन। आपको करना पड़ता है, उसके अंदर न्यू न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लेकर आनी पड़ती हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन के अंदर सारा आपको फ्लेवर मिल जाएगा। दूसरा, अलाइन विद द जीटीएम विद द बिजनेस मॉडल जरूर होना चाहिए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है एक्चुअली, कि आपका क्या आपका रेवेन्यू प्लान है, क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन है, क्या आप फ्यूचर प्लान क्या है, आपका 5 ईयर प्लान क्या है, क्या करना चाहते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू बी डेवलप योर स्ट्रेटजीज जो कि ओवरऑल बिजनेस मॉडल के साथ अलाइन होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम कहीं ये अलग चल रहा है तो वो अलग चल रहा है। नो, यू हैव टू बी थिंक अबाउट प्रॉपरली
आपका प्रॉफिट प्लान, CVP एंड CVC, सारी चीजें साथ मिलकर चलेंगी तो तब जाकर आपका एक अच्छा सक्सेसफुल स्टार्टअप चल रहा होता है। मोस्टली जो हमारे अलाइन इट विद अदर लाइक CVPPF, जो कि हमने पहले भी कहा कि उनको अदर वेंचर के साथ भी अलाइन करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम वन गो में चलते, आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक प्रोडक्ट में से फर्दर उसकी पोर्शंस बनते जाते हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनते जाते हैं, तो हम किस तरीके से उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं। देन दूसरा कि फाउंडर्स एंड टीम एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपके पास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आपका फाउंडर ही एनर्जेटिक नहीं है या टीम में एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपका जो स्टार्टअप है वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं चल पाता, कि फाउंडर को समझ नहीं है और वो कुछ और ही। अक्सर मेरे पास बच्चे जब आते हैं, तो हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे स्पेशली, तो अपने आइडिया के ऊपर बहुत रिजिड होते हैं कि हमने जो सोचा है यही काम चलेगा। तो समटाइम्स आई टोल्ड देम कि बी डिस्कस शेयर योर थॉट्स विद द अदर बिजनेस होल्डर्स, सीरियस कम्युनिटी, आपकी फैमिली है, ऑनलाइन है, किसी के साथ डिस्कस करें, शेयर करें। दे कैन गिव यू द इंसाइट, दे कैन गिव यू द सम हिंट्स। अच्छा, ऐसे भी नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लोगों के साथ के जो कि आपको प्रॉपरली गाइड करे उस पूरे एग्जैक्ट फोरम के अंदर या उस नीश के अंदर, तो उनसे मिलना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी नीश अलग है, किसी और की अलग है, किसी और की अलग है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन द फाइनेंस या आई कैन नॉट कमेंट ऑन द एनी अदर थिंग, ठीक है, जिसकी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। तो एज ए स्टार्टअप, एज अ फाउंडर्स ऑफ द स्टार्टअप्स, आई ऑलवेज टेल देम कि जितना आप डिस्कस, शेयर, कम्युनिकेट करेंगे, सर्वे लेंगे, चीजों को एक्सपेरिमेंट लेवल पे खुद आप करेंगे, तो उतना ज्यादा ही आपकी नॉलेज बढ़ती है, उतना ज्यादा ही सक्सेस रेशो बढ़ता है। और दूसरा, अक्सर फाउंडर्स को एक ये भी डर होता है कि ये मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा, कोई और ले जाएगा। और टीम भी वो बहुत गिनी चुनी, जैसे ऐसे हों कि भले टीम में वो बंदे ले लेंगे जो कि उनके फ्रेंड हों, कि हाँ ठीक है, लेकिन उनको काम नहीं आता उस नीश के साथ या उस जो उनका स्टार्टअप आइडिया उसके साथ, लेकिन वो उनको रख इसलिए लेते हैं कि चले ये हमारे फ्रेंड्स हैं या ये हमारे रिलेटिव्स हैं, कि हमें इसमें। लेकिन एज ए स्टार्टअप आप हमेशा डिस्कस विद द या चूज द टीम वाइजली, कि जिसकी एक्सपर्टीज हो। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग के ही लोग जिनकी स्ट्रेटेजीज या मार्केटिंग आती हो, तो उनसे आप डिस्कस करें। फाइनेंस वाले के साथ आप डिस्कस करें। आपका जो प्रोक्योरमेंट वाले हैं उनके साथ आपकी टीम में बंदा होना चाहिए। इनिशियली स्टेज पे एक दो की होती है, बट व्हेन यू ग्रो, तो फिर उसके बाद आपको प्रॉपर टीम चाहिए होती है जो कि उस चीज को प्रॉपरली लेकर चले। अगर आप कहें नहीं सारा काम हम खुद करेंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। दूसरा, इन्वेस्टर्स गोल, कि आपके पास अगर जैसे ही इनिशियली चले, आपने अपना स्टार्टअप बनाया है, लेकिन उसके बाद यू नीड द इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स का गोल क्या है? वेदर दे लुक फॉर द मनी, कि जी जल्दी से मुझे नेक्स्ट 6 महीने में या नेक्स्ट 2 मंथ्स में मुझे प्रॉफिट देना शुरू कर दो। उनके क्या गोल्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं, कि दोनों को अलाइन होना जरूरी है। अच्छा, अगेन समटाइम्स इन्वेस्टर्स की भी हमें देखना पड़ता है कि उनकी एक्सपर्टीज क्या है, वेदर दे हैव अ गुड एक्सपर्टीज जो कि हमारे ही स्टार्टअप के अंदर इनपुट देकर एक अच्छा हम इन्वेस्टेबल या सक्सेसफुल स्टार्टअप या बिजनेस वेंचर बना सकते हैं। तो वैसी इन्वेस्ट भी सही है। ऐसी भी नहीं लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के सिर्फ हमें पैसे ही चाहिए, फिर उसके बाद खा पी के हम कहेंगे जी अब तो हुआ ही नहीं, फिर इन्वेस्टर का भी आपके पास लोन चढ़ गया कि जी अब वो भी रिटर्न करना होता है। तो व्हाट काइंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट यू लुक फॉर, और किस तरीके से आप ले रहे हो। दूसरा, पार्टनर कैपेबिलिटीज, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, कि आपके साथ जो पार्टनर है, आपकी टीम है या जो भी है, को फाउंडर है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। ये बहुत ज्यादा मैटर रखता है, क्योंकि
this is not a one man show कि हम सारा काम कर लें. तो we need people, team, और उन टीम की align energies, ये बहुत important कर. Sometimes हम इतना अच्छा काम खत्म हो जाता है because of the team, कि टीम हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि ये काम वो नहीं कर पा रहे होते. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर को चलाने के लिए या स्टार्टअप को चलाने के लिए, कि आपकी पार्टनर या टीम या इन्वेस्टर फाउंडर सारे मिलके एक ही लाइन के ऊपर चलें, तो देन इट विल बी अ सक्सेसफुल स्टार्टअप. begin with small, iterate based on data and scale smartly. कि ये भी नहीं है कि आप स्टार्ट ही इतना बड़ा कर लें, बड़ा आप सोचें. छोटे से छोटे छोटे मिनी स्टेप्स रखने से आपका वन डे बिगर जो है आपकी कंपनी बनती है या स्टार्टअप्स बन जाते हैं. तो ऑलवेज कीप अ लिटिल शॉर्ट गोल्स एंड देन गो अप. और इटरेट बेस्ड ऑन डेटा, कि आपकी जो डेटा आ रही है या जो आपके फिगर्स आ रहे हैं या जो आपके एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, आउटकम्स आ रही है फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, उन सबको वाइजली आप कनेक्ट करते जाएं, उनकी डेटा को एनालाइज भी करें. ये नहीं है कि हम कहीं वन गो में जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या मसला हो रहा है, और उसका इफेक्ट आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर पड़ेगा. तो जो आपका स्टार्टअप है, समटाइम्स हम कुछ क्विकली भी डिसीजन ले लेते हैं कि जल्दी से ग्रो करना है, लेकिन वो ग्रोथ स्मार्टली है या नहीं है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. उस दिन भी मैं एक मीटिंग में थी, तो हमारी स्टार्टअप्स की मीटिंग्स थी, किसी बोर्ड में हम बैठे थे. तो दे सेज के जी हमारे पास जो फाउंडर्स हैं, देयर विल, देयर पावर वो बहुत कम है. हमें यहाँ पर स्टार्टअप्स की मशरूम्स नहीं चाहिए, हमें वाइजली स्टार्टअप्स चाहिए जो कि फाउंडर्स के ऊपर बेस्ड करता है. कि जितने अच्छे फाउंडर्स होंगे, जितने अच्छे स्मार्ट फाउंडर्स होंगे, जिनकी विल पावर होगी, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए. उन आइडियाज को आप ग्रो भी करो. जरूरी नहीं है कि हम हर कोई स्टार्टअप फाउंडर बन जाता है. इट्स नॉट पॉसिबल. आप एक क्लास में, जैसे मैं अगर देखती हूँ मेरे स्टूडेंट्स हैं 100 की क्लास है, तो मैक्सिमम उसमें से 4 से 5 ही कोई अच्छे आइडियाज लेकर आते हैं बच्चे, जो कि स्टार्टअप में जाना चाहते हैं. और इतना ही रेशो होता है. अगर हम कहें कि हर बच्चा स्टार्टअप लेकर आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल. हाँ, उसमें से टीम बनती जाती है और फिर आगे आप चलते जाते हैं. लेकिन अक्सर हमारे यहाँ ये भी एक प्रेशर है कि हर बच्चा स्टार्टअप पे चला जाए या हर बच्चा बिजनेस करना शुरू कर दे. Again, every mind is not a business mind. Now, this is the end of the slide. So thank you. And there is a question answer sessions. Dr. Alpha, you did a great job. Thank you so much for coming and sharing your thoughts. It was a very good presentation. And inshallah, we're happy to answer any question. But if you don't have any question, jaake so jao. Allah Allah khair. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thanks, sir. Iza, Allah Hafiz. Thank you. Allah Good night. Good night. Good night.